से ही गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, hello, and a very pleasant morning to everyone. A very, very warm welcome to this session. I am DP Singh, Assistant Professor, Electrical Engineering Department at GEC Bilaspur, and today I have the pleasure of being your host for the day. मैं आप सबका फिर से स्वागत करना चाहूंगी अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद बिलासपुर एवं शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में, जिसका शीर्षक है दिव्यांग विमर्श की प्रासंगिकता। हमारी देश की परंपरा रही है अतिथि देवो भव। सो आई वुड लाइक टू वेलकम डॉक्टर विनय कुमार पाठक, डायरेक्टर विकलांग विमर्श राष्ट्रीय शोधपीठ एंड द चेयरपर्सन ऑफ दिस प्रोग्राम. I would also like to extend my warm welcome to Mr. Diwakar Mishra, retired IFS officer and State Project Administrator, SPIO, Chhattisgarh. With equal pleasure, I extend my welcome to Dr. Anita Singh, Shri Madan Mohan Agrawal, Dr. Suresh Maheshwari, Dr. Champa Singh, Professor Jitendra Singh, our principal sir, all faculties, and last but not the least, to all attendees. Before we get started, let me give a brief introduction of our chairperson of the program, Dr. Vinay Kumar Pathak. आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होता भाग्य है कभी होता सौभाग्य। 11 जून 1946 को बिलासपुर में जन्मे शब्द साधक डॉक्टर पाठक ने हिंदी और भाषा विज्ञान में पीएचडी और डीलिट की दोहरी उपाधि प्राप्त कर अकादमिक दृष्टि से अखिल भारतीय स्तर पर जहां कीर्तिमान स्थापित किया, वहीं 63 शोधार्थियों ने आपके निर्देशन में पीएचडी की उपाधि अर्जित की है। छत्तीसगढ़ी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति में सर्वाधिक कार्य करके एवं करा के आप छत्तीसगढ़ के जीवंत विश्वकोश के रूप में विश्रुत विख्यात है। छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित कवि, छत्तीसगढ़ी साहित्य के प्रथम प्रामाणिक समीक्षक, जीवन लेखक एवं गद्य के प्राय सभी विद्याओं के सर्जक एवं शोधक के रूप में आपने छत्तीसगढ़ी को राष्ट्रीय क्षितिज प्रदान किया है। श्री दलित आदिवासी जनजातीय विमर्श पर चर्चित होने के बाद अब दिव्यांग विमर्श का प्रवर्तन आपको 21वीं सदी का श्रेष्ठ समीक्षक सिद्ध करता है। अनेक राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों में सम्मानित आप एक आदर्श प्राध्यापक, सम्मानित साहित्यकार तथा राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा के सेतु पुरुष के रूप में 5 दशकों से अधिक काल तक संलग्न रहे हैं। सर, मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने अपनी उपस्थिति से इस संगोष्ठी को अलंकृत किया है। Now, I would like to invite Dr. M.L. Agrawal, HOD, Civil Engineering Department and Coordinator, Equity Action Plan, GEC Bilaspur, to address the gathering. So please. Hello. 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 Yes, sir. Hello. Good morning, everybody. On behalf of Government Engineering College Bilaspur, I welcome you all on this national webinar on the topic दिव्यांग विमर्श की relevance. I welcome our chief guest Sri Diwakar Mishra ji, retired IFS and State Project Administrator for SPIU Chhattisgarh. I welcome the chairman of today's national webinar, Dr. Vinay Pathak, Director of Viklang Vimarsh Rashtriya Shodhpeeth. I welcome Madam Champa Singh, Professor of Banaras Hindu University. I also welcome Professor Suresh Maheshwari. He is retired professor of Amalner, Maharashtra. I welcome Professor Jitendra Kumar Singh, Associate Professor, Rajasthan University, Jaipur. I also welcome Dr. Anita Singh. She is lecturer in St. Xavier's School, Bilaspur. I also welcome our principal, Dr. B.S. Chawla, who is always motivating and inspiring
to hold such kind of program in our institute. I welcome Sri Madan Mohan Ji Agrawal, National General Secretary, Viklang Chetna Parishad, Bilaspur. I welcome Dr. Anita Agrawal, convener of this national webinar. I welcome all the listeners, all the participants, particularly our students and other participants related to Viklang Chetna Parishad and other participants from literature side who have joined this national webinar, and our faculty members of Government Engineering College Bilaspur. I welcome you all for this wonderful national webinar related to the problems of Divyang. These Divyangs are very essential and very part and parcel of our society, and the different kinds of the problems faced by Divyang, this will be addressed in this particular national webinar by different our resource persons. So I welcome you all on this national webinar on behalf of Government Engineering College Bilaspur as well as Viklang Chetna Parishad Bilaspur. So I welcome you all, sir, and I wish this national webinar to be a great success. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. It is said, if your action inspires others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader. With this, I would like to invite Dr. B.S. Chawla, Principal GEC Bilaspur, to deliver the welcome address. Sir, please. सर आपका म्यूट है सर. थैंक यू दीपी. दिव्यांग विमर्श की प्रासंगिकता, इस विषय पर आयोजित इस वेबिनार के मुख्य अतिथि SPIU छत्तीसगढ़ के स्टेट प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर श्री दिवाकर मिश्रा जी IFS, जो इस कॉलेज की प्रगति के कर्णधार रहे हैं और हमेशा प्रोत्साहित करते रहे हैं कि हमारा महाविद्यालय सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में मध्य भारत में स्थापित हो. आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जो परिचय के मोहताज नहीं है, डॉक्टर विनय पाठक जी, सभी प्रतिष्ठित वक्तागण जिनमें मुख्य रूप से प्रोफेसर डॉक्टर चंपा सिंह फ्रॉम BHU, डॉक्टर सुरेश माहेश्वरी, प्रोफेसर जितेंद्र सिंह, प्रोफेसर अनीता अग्रवाल मैडम, प्रोफेसर अनीता सिंह और लोकल चैप्टर के श्री मदन मोहन अग्रवाल जी जो नेशनल सेक्रेटरी भी हैं, ऑल द गेस्ट्स, फैकल्टीज एंड स्टूडेंट्स. इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह विषय अत्यंत प्रासंगिक है. आंकड़ों से आपको ज्ञात होगा कि इस देश में लगभग 2.25 करोड़ लोग स्पेशली एबल्ड हैं और पूरे विश्व में यदि बात करें तो 37.5% वर्ल्ड पॉपुलेशन स्पेशली एबल्ड कैटेगरी में आती है, जो लगभग 200 करोड़ से भी अधिक हैं जिन्हें किसी न किसी प्रकार के चैलेंज हैं. और स्पेशली एबल्ड में जो मैक्सिमम सेक्टर है वो है सीइंग डिसेबिलिटी, विजुअल डिसेबिलिटी, विजुअली इम्पेयर्ड या ब्लाइंडनेस, उससे रिलेटेड है. ये अत्यंत महत्वपूर्ण है. यदि हम अपने आसपास देखें कि यदि किसी परिवार में कोई सदस्य किसी प्रकार से स्पेशली एबल्ड है या दिव्यांग की श्रेणी में है तो उस परिवार के लिए दृष्टिकोण पूरे समाज का, स्वयं उस परिवार का उस सदस्य के प्रति भिन्न होता है. और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो स्पेशली एबल्ड है उनके प्रति दया का भाव नहीं चाहिए, उनके प्रति समाज में सम्मान की नजर होनी चाहिए. और समाज में उनको देखने का नजरिया सम्मानजनक तभी हो सकेगा यदि स्पेशली एबल्ड सदस्य शिक्षित हो, स्वनिर्भर हो और पूर्ण रूप से संरक्षित हो, परिवार के लोग उनके प्रति सम्मान का भाव रखते हों. तो हम लोगों को आज इस चर्चा के दौरान यह निश्चित रूप से सोचना चाहिए कि हमारे देश के 2.25 करोड़ लोग
इन लोगों को किस प्रकार से हम समाज की मुख्य धारा में ला सकते हैं, ऐसे कौन से कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि वे भी मुख्य धारा में शामिल हो सकें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। Thank you so much, sir. Just a little housekeeping before we get started. If you have any question, you can write them into chat box or else you can raise your hand. I also request all of you to fill the feedback form at the end of the session. It is very important for your e-certification. The link for the same is shared in the chat box. So, without further ado, let's start the session. I would like to invite our first guest speaker of the session, Dr. Anita Singh, lecturer Hindi, St. Xavier's High School, Bilaspur, for her speech on the topic Divyangta ka Saman Parichay. Anita ma'am, please. अनीता मैम अपना माइक ऑन कर लीजिए। सर्वप्रथम श्रद्धेय गुरुदेव डॉक्टर विनय कुमार जी को सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ। सम्माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर दिवाकर मिश्रा जी, आदरणीय डॉक्टर चंपा मैम, सम्माननीय सुरेश माहेश्वरी जी, अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री मदन मोहन अग्रवाल जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, डॉक्टर अनीता अग्रवाल जी, डॉक्टर BS चावला जी, डॉक्टर ML अग्रवाल जी। मैं डॉक्टर अनीता सिंह आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। आज जब हम लोग ये विकलांग दिवस का कार्यक्रम कर रहे हैं तो मुझे स्वर्गीय डॉक्टर द्वारिका प्रसाद अग्रवाल जी की याद बहुत आ रही है। सर्वप्रथम मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उनकी कमी आज बेहद महसूस हो रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम सब उनकी अनुपस्थिति में अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद का कोई कार्यक्रम कर रहे हैं और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वे हम सबके साथ हैं। वे अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद के नींव थे, हम सबके प्रेरणा स्रोत थे। उनकी प्रेरणा एवं गुरुदेव डॉक्टर विनय पाठक का यह आशीर्वाद और मार्गदर्शन ही था कि मैं विकलांगता पर आधारित अपनी पुस्तक मंजिलें और भी हैं पूरी कर पाई। क्योंकि स्वर्गीय डॉक्टर DP अग्रवाल जी का यह मानना था, उनका सुझाव था कि विकलांगता पर जितनी भी सामग्री है उसको एक जगह में एकत्रित कर और उसको पुस्तक का रूप दूं, और मैंने इस कार्य को किया। लेकिन अफसोस है कि पुस्तक आने से पहले ही वो हम सबके बीच से चले गए। आज हम सब विकलांग दिवस की प्रासंगिकता पर बात करने के लिए उपस्थित हुए। विकलांगता एक ऐसा शब्द है जो किसी को भी शारीरिक, मानसिक और उसके बौद्धिक विकास में अवरोध पैदा करता है। विकलांगता का अभिप्राय है शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्ति जो अपने दैनिक क्रियाकलाप को भी करने में असमर्थ, किसी कारण से कोई अंग शिथिल हो या विकृत हो तो विकलांगता के अंतर्गत आता है। एक अनामनित घटना है। आज विश्व में लगभग 600 मिलियन व्यक्ति विकलांगता के शिकार। संपूर्ण भारत देश में प्रकाशित आंकड़े जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार निःशक्त जनों की संख्या है 2,19,06,769 और देखने की क्षमता में कमी लोगों की संख्या है 1,06,34,881। बोलने में अक्षम लोग हैं 16,40,868। हाथ पैरों से अक्षम लोग हैं 22,63,821। भारत में विकलांगता के प्रकार की बात करें तो UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार विश्व में 10% विकलांग है और 2001 की जनगणना के अनुसार 25% है। पहले 4 प्रकार की विकलांगता थी: अस्थि बाधित, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित एवं मानसिक विकलांगता को ही प्रमुख माना जाता था। परंतु बीमारियों को विकलांगता में सम्मिलित करने के बाद 21 प्रकार की विकलांगता सामने आई है, जिनमें प्रमुख ऑटिज्म, पौनापन, बधिर विकलांगता, अर्थश्रवणता या बहरापन, थैलेसीमिया, मांसपेशीय दुर्विकार,
दृष्टिहीनता, अल्प दृश्यता, सेरेब्रल पालिसी, हेमोफीलिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मानसिक अस्वस्थता, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, बौद्धिक अक्षमता जिसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी कहते हैं, हरकत विकलांगता जिसे लेकोमीटर डिसेबिलिटी कहते हैं, मल्टीपल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी या डिसलेक्सिया कहते हैं, स्पीच इम्पेयरमेंट, कुष्ठ रोग, पार्किंसन और लास्ट में एसिड अटैक को भी विकलांगता में शामिल किया गया। इस 21 प्रकार की विकलांगता के अलावा भी अन्य बीमारियां हैं जिसमें व्यक्ति अशक्त या विकलांग हो जाता है। अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद के मुखिया स्वर्गीय डॉक्टर द्वारिका प्रसाद अग्रवाल ने निष्ठा और समर्पण का परिचय देते हुए न केवल इस परिषद की पीठिका तैयार की, वरन विकलांगता के 121 लक्ष्य निर्दिष्ट कर प्राथमिकता के आधार पर विकलांगता के पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद बिलासपुर ने 21वीं सदी के दस्तक के साथ जहां विकलांगों की सेवा के माध्यम से उनके पुनर्वास और प्रजातंत्र में सहभागिता की दृष्टि से चेतना का संचार किया, वहीं उनके योजनाओं द्वारा विकलांगता के क्षेत्र में कार्य कर अदम्य इच्छा शक्ति का भी परिचय दिया। समाज का ध्यान आकृष्ट करके, शासन को सचेत करके जहां अखिल भारतीय स्तर पर विकलांगों के जन जागरण को विस्तार दिया, वहीं पहली बार समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विकलांग युवक युवती परिचय सम्मेलन कराकर और विवाह संयोजित कर इनके पारिवारिक जीवन को नया आयाम दिया। स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी जनजातीय विमर्श के बाद और जाति से रहित विशुद्ध मानवतावादी दृष्टि पर आधारित विकलांग विमर्श आज अंतरराष्ट्रीय क्षितिज को स्पर्श कर रहा है। पाठ्यक्रम और शोध विषय के रूप में विकलांग विमर्श अकादमिक लोगों के आकर्षण का केंद्र प्रमाणित हुआ है। इस दृष्टि से अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद का अवदान अविस्मरणीय है और रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, हमें दिव्यांगता के समान परिचय करवाने के लिए। इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री मदन मोहन अग्रवाल, नेशनल जनरल सेक्रेटरी अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद टू एड्रेस द गैदरिंग। हेलो मदन सर। एमएल अग्रवाल सर का माइक ऑफ। सर माइक अनम्यूट कर दीजिए। लाइट। हेलो हाँ हेलो ये सर आवाज आ रही है सर जी। हाँ, मैं बोलूं? हाँ, मैं मदन मोहन अग्रवाल, अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद, केंद्रीय कार्यालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़। महामंत्री का दायित्व मेरे पास है राष्ट्रीय। अब मैं हेलो यस सर। हेलो यस सर। अखिल सर आपकी आवाज भारतीय आ रही है जी। अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद, हमारा आस्था मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये हमारी संस्था का आस्था मंत्र है और इसी आस्था मंत्र को लेते हुए हम
अपने संस्था से संबंधित कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं, मैं अपनी संस्था के बारे में, अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद के बारे में कुछ आपको ब्रीफ में बताना चाहता हूँ। सन 2000 में कुछ 10-15 लोग, सेवाभावी लोग बैठे, ये इस विकलांगता के क्षेत्र में सेवा कार्य करना है, लेकिन ये किसी के पास कोई दृष्टि नहीं थी कि क्या करना है। कई मीटिंगों का दौर हुआ, उसके बाद ये निर्णय हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर विकलांगता की सेवा में अपने कार्य को प्रारंभ करना है। इसके लिए हमारे उस समय के तत्कालीन राष्ट्रीय संगठन मंत्री सीताराम अग्रवाल जी ने बीड़ा उठाया कि संपूर्ण भारत के 16 प्रांतों में वे घूमेंगे और जाकर के लोगों से संपर्क करेंगे। संपर्क करने के बाद उन्होंने 16 राज्यों में घूम घूम करके सदस्य बनाए और अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद का एक राष्ट्रीय स्वरूप बना। उसके बाद इसका पंजीयन हुआ अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद के नाम से। पंजीयन क्रमांक है 2956। 5/8 सन 2000 में इसका पंजीयन हुआ। इसके बाद जो रूपरेखा बनी काम की, वो काम की रूपरेखा इस रूप में बनी कि हमें विकलांगता की सेवा में विकलांगों के लिए कुछ ऐसा ठोस काम करना है कि जो विकलांग व्यक्ति हमसे सेवा प्राप्त कर ले, उस सेवा के लिए उसको दूसरी जगह फिर न जाना पड़े। तो इसके लिए हमने सबने विचार विमर्श करके ये बीड़ा उठाया कि ऐसा व्यक्ति जो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता, चल नहीं पाता, पोलियोग्रस्त पैर हैं, टेढ़े मेढ़े पैर हैं, छोटे बड़े पैर हैं, उन लोगों की शल्य क्रिया करके उसको इस लायक बनाया जाए कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। इसके लिए हमारे पास डॉक्टरों की टीम थी। 2 डॉक्टर्स शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए थे, डॉक्टर GL अरोरा और डॉक्टर KS वाजपेयी। उन्होंने हमको सबको संबल दिया और पहला शिविर सन 2000 में स्थानीय बिलासपुर के अग्रसेन भवन में उस शिविर को आयोजन किया। उसमें 32 ऑपरेशन हुए और वहां से ही हमारा सिलसिला चल पड़ा। एक शिविर में करने में 3 महीने का समय लगता है। पहले विकलांगों को बुलाना, उसमें से चयन करना, चयन करके फिर उनकी शल्य क्रिया करना, शल्य क्रिया करने के बाद उनको 6 दिन अपने संरक्षण में रखना, उनकी पूरी सेवा शुश्रूषा करना, फिर 2.5 महीने बाद उनको बुलाना, उनका प्लास्टर काटना, प्लास्टर काट करके उनको फिजियोथेरेपी देना और कैलिपर्स के सहारे उनको चलाना। ये पूरा करीब 2.5 से 3 महीने का पीरियड लगता है और इस काम को हम लोग निरंतर करते चले आ रहे हैं। ऐसे अभी तक 60 शिविर अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद के माध्यम से किए जा चुके हैं। न केवल बिलासपुर में, रायपुर में, राजनांदगांव में, कोतमा में, कांकेर में, आगरा में, दिल्ली में और भी बहुत सारे देश के अन्य जगह में जाकर के इन शिविरों का संपादन किया गया है। यहाँ से ही पूरे पैरामेडिकल स्टाफ की टीम जाती है, यहीं से चिकित्सक जाते हैं, सर्जन जाते हैं और जाकर के उस शल्य क्रिया को कर करके आते हैं। ये सारा काम विकलांगों के लिए निःशुल्क होता है। हमने जहाँ भी शिविर आयोजन करना होता है, वहाँ एक समिति हम गठित कर लेते हैं। उस समिति को पूरा जिम्मा दे देते हैं। वो उस शिविर की पूरी देखभाल करते हैं और उनको हम बताते हैं कि कैसे करके इस काम को आगे बढ़ाना है और फिर उसके हमारे संरक्षण में उस काम को वो आगे बढ़ाते हैं। अब मैं अपनी गतिविधियों के बारे में थोड़ा सा और विस्तार स्वरूप आपको बताना चाहूँगा। ये हमारा शिविर का जो कार्यक्रम कंटिन्यू चल रहा था, इसी बीच में शहडोल सन 2004 शहडोल में सन 2004 में शिविर चल रहा था। तो कई लोग जब शिविर चल रहे होते हैं तो सेवा देने के हिसाब से भी आ जाते हैं। वहीं एक विकलांग युवक लड़का, एक पैर से विकलांग,
करीब 25 साल का रहा होगा, वो भी सेवा शुश्रूषा में लगा हुआ था। किसी को दवाई दे देना, किसी को चाय पिला देना, किसी को कहीं कोई जरूरत है, फल वगैरह लाना है तो ला करके उसको दे देना, इस तरह की सेवा अपने मन से कर रहा था। हमारे डॉक्टर साहब आदरणीय डॉक्टर DP अग्रवाल, जिन्होंने इस विकलांग चेतना परिषद की नींव रखी, हमारे मार्गदर्शक रहे, अभी चूंकि स्वर्गीय हो चुके हैं, इसी दिसंबर को हम लोगों की बहुत बड़ी क्षति हुई है उनके नहीं रहने से। उनकी दृष्टि उस विकलांग व्यक्ति के ऊपर पड़ी, तो उन्होंने सोचा कि शायद ये शल्य शिविर के लिए, शल्य क्रिया के लिए आया होगा। उनसे पूछा कि तुमने शल्य क्रिया क्यों नहीं करवाई? बोले मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभ्यस्त हो चुका हूँ, लेकिन मेरी एक समस्या है। क्या समस्या है भाई तुम्हारी? बोले मैं सन 2004 की बात है, मैं करीब 15-16 हजार रुपया महीना कमाता हूँ, लेकिन मेरी शादी नहीं हो रही। एकदम से ऐसा लगा कि एक झटका लगा हो, ये एक व्यक्ति जो 15-16 हजार रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन चूंकि वो विकलांग है इसलिए उसकी शादी नहीं हो रही। इस समस्या पर हम लोगों ने मंथन करना चालू किया और ये निर्णय लिया कि सन 2005 में 2004 में ही कि एक विकलांगों के सामूहिक विवाह का आयोजन करेंगे, जिसमें आइदर ऑफ द टू, पुरुष और स्त्री दोनों में से एक जने या दोनों ही विकलांग होना जरूरी है। हमने किसी तरह की जाति की और किसी तरह की बाध्यता को नहीं रखा, जाति से परे कोई भी जाति का हो, जाति जाति में करे, अंतर जाति करे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन विकलांग होना जरूरी है। प्रयास किया, ले दे करके 6 जोड़े इकट्ठे हुए। अब 6 जोड़े जो इकट्ठे हुए उसमें भी एक प्रॉब्लम ये आ गई कि एक ईसाई जोड़ा था, एक मुस्लिम जोड़ा था और 4 हिंदू जोड़े थे। तो उनके धर्म के अनुसार ईसाई के लिए पादरी को बुलाया गया, मुस्लिम को काजी को बुलाया गया और उनके माध्यम से उनका निकाह और विवाह जैसा भी होना था वो किया गया। फिर उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा। तब ये हमारा पहला प्रयास था सन 2005 में। इसके पहले हमने कहीं भी पूरे देश में, चाहे समाचार पत्रों के माध्यम से हो या अन्य किसी माध्यम से हो, हमें कोई जानकारी नहीं थी कि विकलांगों का कहीं कोई सामूहिक विवाह का भी आयोजन हुआ है। दूसरे साल फिर हमने इस कार्यक्रम को किया, 18 जोड़े तैयार हो गए। तीसरे साल फिर किया, 39 जोड़े हो गए। फिर इस कार्यक्रम को हमने राज्य स्तरीय कर दिया और रायपुर इसको शिफ्ट कर दिया। हमारी रायपुर की शाखा इसको कंटिन्यू करते चली आ रही है। एक बार तो उसमें 95 जोड़ों का, सबसे हाईएस्ट 95 जोड़ों का सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ था, जो कि आज तक चलता चला आ रहा है। ऐसे 23 क्या नाम है विकलांग सामूहिक विवाह के आयोजन अभी तक हो चुके हैं। 60 शल्य शिविर के आयोजन हो चुके हैं। इसके अलावा उपकरण देना, ट्राईसाइकिल देना, कैलिपर्स देना, कटे हुए पैरों के लिए आर्टिफिशियल लिम्स देना, हाथ देना और कई सारी चीजें अपन करते रहते हैं। इन सब कार्यक्रमों के करते करते के बीच में एक चीज जो मुख्य बात हमारे ध्यान में आई, वो ये ध्यान में आई कि विकलांगता को बहुत ही उपेक्षित दृष्टि से देखा जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे पूरे पाठ्यक्रम में, जी, हमारे पूरे पाठ्यक्रम में कहीं भी विकलांगता को एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जाता। चाहे आप स्वयं शिक्षाविद हैं, देख लें, पहली से लेकर के 12वीं तक और 12वीं से लेकर अपर क्लास तक कहीं भी पाठ्यक्रम में एज ए सब्जेक्ट विकलांगता नहीं है। आप जातिवाद पढ़ा रहे हैं, स्त्रीलिंग भेद पढ़ा रहे हैं, समाज की अन्य समस्याओं को पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या जो कि 10% को छूती है उसको आप नहीं पढ़ा रहे हैं। हमारा ये अनुरोध था कि आप विकलांगता को एज ए सब्जेक्ट इसमें स्थापित करें। इसके लिए हमारे आदरणीय डॉक्टर विनय पाठक जी ने सबसे पहले साहित्यकारों को, पूरे देश के साहित्यकारों को आह्वान किया और उनसे कहा कि आप अपनी लेखनी विकलांगता के ऊपर चलाएं और विकलांगता पर साहित्य सृजन करें। और उसका प्रभाव ये हुआ कि अभी तक 5 या 6 PhD अलग अलग प्रांतों में हो चुकी हैं। आज तक इस तरह की PhDयां कहीं भी नहीं हुई थी विकलांगता के लिए। हमने जो साहित्य सृजन किया उसके माध्यम से उनको साहित्य मिला और उन साहित्य के माध्यम से उन लोगों ने PhD हासिल करी और भी PhD हो रही है। इसके साथ ही साथ हम एक निबंध प्रतियोगिता पूरे राज्य स्तर की चला रहे हैं। उस निबंध प्रतियोगिता पर हमने विषय दिया है विकलांगता के ऊपर आप लिखें। पाठ्यक्रम के
विकलांगता को पाठ्यक्रम में शामिल करें, इसके ऊपर लिखें। और सेवा का कोई विकल्प नहीं, उसकी हमने निबंध आमंत्रित किए हैं। बहुत सारे निबंध हमारे पास आ चुके हैं और भी आ रहे हैं। इन सारे निबंधों को जहां जहां से निबंध आते हैं उनको वहीं से हम जांच करके उनको पुरस्कृत करते हैं। फिर राज्य स्तर पर फिर उन निबंधों पर जो प्रथम द्वितीय आए हैं उनको हम पुनः जांच करेंगे और फिर से उनको राज्य स्तर पर उनका पुरस्कृत करके उनको भेजेंगे। उसमें से जो उत्तम निबंध आएंगे उनकी एक लिस्ट बना करके पूरे यूनिवर्सिटी, पूरे हिंदुस्तान की जितनी विश्वविद्यालय हैं सबको हम उस लिस्ट को भेजेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि आप इस लिस्ट को देखें, अवलोकन करें और इसके अनुसार आप देखें कि विकलांगता को आप कहाँ स्थापित कर सकते हैं पाठ्यक्रम में, अपने पाठ्यक्रम में स्थापित करें। ये तो एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू हमारा जो निरंतर सेवा कार्य का चल रहा है, हमने करीब बिलासपुर में करीब 5 करोड़ की लागत से एक अस्पताल का निर्माण किया है। हमें हमारे ही एक संरक्षक सदस्य आदरणीय श्री रामचंद्र जी अग्रवाल ने 1.25 एकड़ के लगभग जमीन दान में दी। उस पे 21,000 वर्ग फुट पे 3 फ्लोर का हॉस्पिटल बिल्डिंग बनकर के तैयार है। उस बिल्डिंग का नाम है अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद द्वारा संचालित श्री रामचंद्र गीता देवी अस्पताल अनुसंधान एवं निशुल्क सेवा केंद्र। इसमें शल्य शिविर का कार्य, फिजियोथेरेपी का कार्य, उपकरण निर्माणशाला का कार्य, राष्ट्रीय विकलांग शोध पीठ का कार्य, सभा भवन और साथ ही साथ आगे चल करके विकलांगों को विभिन्न आयामों में ट्रेनिंग देना, चाहे वो उनके आर्थिक पुनर्वास से संबंधित हो, चाहे उनके शारीरिक विकलांगता से संबंधित हो और दूसरी अन्य गतिविधियों के लिए हमने उस सेंटर को खड़ा किया है। उसको हम 4-6 महीने में रनिंग में ले आएंगे, ऐसी हमारी परिकल्पना है। जितने भी हमारे सदस्य और जितने भी हमारे और बंधु हमसे मुखातिब हैं, जो हमसे सुन रहे हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कि जितना भी हो सके वो अधिक से अधिक इससे जुड़ें और अपने इस सेवा कार्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर, आपका आभार और कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने हम सभी को अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद जैसी लोक कल्याणकारी संस्था और उसके देशव्यापी कार्यों से परिचित करवाया। आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश महेश्वरी, प्रताप कॉलेज को उनके भाषण के लिए, जिसका शीर्षक है दिव्यांग की विभूतियां एवं दिव्यांग विमर्श। वीडियो ऑन कर अच्छा हेलो सर, आपके माइक म्यूट है। हाँ हेलो, यस सर। हेलो, नमस्कार, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ यस सर। सभी को सादर प्रणाम। आज का वेबिनार दिव्यांग विमर्श पर केंद्रित है। बिलासपुर का शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय और बिलासपुर की ही विकलांग सेवी संस्था अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद, इन दोनों के ध्यान से यह आज का वेबिनार संपन्न हो रहा है। इस वेबिनार के मुख्य अध्यक्ष श्रद्धेय भाई डॉक्टर विनय कुमार जी पाठक, मुख्य अतिथि श्री दिवाकर मिश्रा जी, सम्माननीय अतिथिगण, संयोजिका डॉक्टर अमृता अग्रवाल जी, डॉक्टर ML अग्रवाल जी और परिषद के मदन मोहन अग्रवाल जी और उपस्थित प्राध्यापक भाइयों बहनों और छात्र छात्राओं। नया विषय है, यह सामाजिकता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बात यह है कि विकलांगों को किस नाम से पुकारा जाए यह भी अब तक तय नहीं था। कोई कहता था लूला, लंगड़ा, अंधा, काना, बहरा या फिर एकाक्ष, गूंगा आदि।
तो इनमें विकलांगों को एक हम नाम देने का प्रयास विकलांग चेतना परिषद ने किया। पहले कहा विकलांग मतलब जिसका अंग विकल है वह विकलांग। फिर हमने कहा निशक्त और उसके साथ चेतना को जोड़ा, मतलब अंग बाधित शक्ति उसमें नहीं है, दुबला नहीं है, वो कुछ करने की उसमें हिम्मत है, इसलिए निशक्त कहा। फिर निशक्त चेतना जगाई 2016 के कानून के द्वारा। भारत के लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया और 2016 के कानून से यह कानूनी तौर पर स्वीकृत भी हो गया। जिस तरह विकलांगजनों के लिए संबोधन नहीं था, वैसे ही उनका अस्तित्व भी नकारा गया था। लोग छुपा कर रखते थे या फिर उसको दया दिखाते थे कि यह दया का पात्र है, इसको मदद चाहिए, भीख चाहिए। लोग उसको अपना परिवार में कोई मेहमान आए तो छुपा कर रख लेते थे। शायद इसलिए ऐसा हुआ होगा कि कुछ लोक मान्यताएं इसके साथ थी, कुछ पौराणिक मान्यताएं थी कि रामायण में मंथरा दासी जिसके कारण राम को वनगमन करना पड़ा, वह गति बाधित थी, लंगड़ा कर चलती थी, उसके कारण रामायण हुआ। रावण जो था वह दशानन था, मतलब 10 मुहा था, तो ये 10 मुहा होना उसकी एक विकलांगता थी। महाभारत में भी धृतराष्ट्र दृष्टिबाधित थे और शकुनी गतिबाधित थे, ये हमेशा षड्यंत्र करते रहते थे। तो इसलिए यदि खल पात्र दिखाना है, बुरा पात्र दिखाना है, तो वह लूला, लंगड़ा या और काना जैसा भी होगा उस तरह का विकलांग दिखाया जाता था। तो ये बात अस्वीकृत हुई कि ऐसा नहीं है, विकलांग लोग भी अब कुछ कर सकते हैं, और ये कुछ कर सकते हैं तो उनकी कुछ विभूतियां हमारे पुराणों में मिलती है, महाकाव्य में मिलती है, साहित्य में मिलती है, लोक मान्यता इनको मिली है। इन विभूतियों का पहले मैं जिक्र करता हूं कि ये विभूतियां कैसी है। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ कर हम जिसकी प्रार्थना करते हैं वे भगवान गणेश जी को हमने वक्रतुंड कहा है, महाकाय कहा है, तुंदिल कहा है। गणेश जी नाराज नहीं होते उनके इन विशेषणों से, उल्टे प्रसन्न होते हैं कि इन्होंने मेरा वह विशेषण कहा को प्रयोग किया है। उनके पिताश्री भगवान शंकर तो त्रिनेत्र है और उन्होंने भगवान शंकर ने अपने विवाह में सभी तरह के अपाहिजों को, दिव्यांगों को बाराती बनने का अवसर दिया। ये सम्मान पुराण में शायद पहली बार ही मिला है। तो ये जैसे हमारे श्रद्धा के पात्र है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण जो बचपन में अटखेलियां करते हैं, महाराष्ट्र में जिनको लंगड़ा बाल कृष्ण कहकर पूजते हैं, तो ये ऐसे को हमने पूजनीय बनाया है। उसी तरह संत शिरोमणि सूरदास जी का नाम यदि इस प्रसंग में ले, जिन्होंने कृष्ण भक्ति की धारा प्रवाहित की और वात्सल्य रस का निर्माण किया, उन्होंने सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल लीलाओं के इतने सुंदर चित्र, सजीव चित्र प्रस्तुत किए कि कोई आंखों वाला भी नहीं कर सकता था। तो जैसे मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माटी खायो, तो ये इस तरह की जो उनकी काव्य पंक्तियां हैं, घुटनों के बल चलने वाले कृष्ण, चांद के लिए हट करने वाले कृष्ण, मिट्टी न खाने वाले कृष्ण, नटखट कृष्ण, या फिर माँ को उलाहना देने वाले कि मैं काला हूं इसलिए तुम मेरा सम्मान नहीं करती, आदि बातें जो उन्होंने अंकित की है
सूरदास जी ने। तो इसलिए सूरदास जी साहित्य के सूर्य बने, जबकि वे क्या थे, प्रज्ञा चक्षु उनके पास था और वे दृष्टिबाधित थी। इसीलिए हिंदी साहित्य में कहा गया, सूर सूर तुलसी शशि उडुगुन केशव दास, अब के कवि खद्योतसम जह तह करत प्रकाश। दूसरे संत में हमारे आंखों के सामने आते हैं जो सूफी काव्यधारा, प्रेम मार्गी काव्यधारा के पुष्ट करने वाले हैं, वो है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ये चेचक से दाग से युक्त थे, एकाक्ष थे, ठिगने थे, इसलिए लेकिन फिर भी उन्होंने पद्मावत के माध्यम से प्रेम और सौंदर्य को इस तरह अद्भुत तरीके से प्रस्तुत किया कि वह लौकिक सौंदर्य खुदा का नूर बन गया, अलौकिक सौंदर्य बन गया, और वह पद्मावत महाकाव्य के माध्यम से भारतीयता को उन्होंने प्रस्तुत किया था। आधुनिक काल की बात करें तो हम कल्याण नामक धार्मिक पत्र के पथ प्रदर्शक स्वामी रामचंद्र दास जी को वाचा बाधित थी, उनको बोलते नहीं आता था। श्री राम भद्राचार्य जी दृष्टि बाधित है, परंतु उन्होंने चित्रकूट में विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना कर आदर्श उपस्थित किया है और इन्हें पद्मश्री का सम्मान भी प्राप्त हुआ है। हिंदी के लघु कथाकार राम यतन प्रसाद यादव, राष्ट्रीय विकलांग संदेश पत्रिका के संपादक श्रीमान सीताराम जी अग्रवाल जी, जो विकलांग चेतना परिषद के मुख्य आधार स्तंभ है, सुप्रसिद्ध गजलकार जहीर कुरैशी, सुप्रसिद्ध संगीतकार रविंद्र जैन, नृत्यांगना सुधा चंद्रन आदि कई नाम हैं जो अपनी विकलांगता पर विजय पाकर एक नया इतिहास प्रदान किया। आपको मालूम होगा कि पृथ्वीराज चौहान की आंखें गोरी ने फोड़ दी थी, फिर भी पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को वध किया अपने बाण के द्वारा और देश के वे प्रथम स्वतंत्रता सेनानी बने। ब्रेल लिपि के जनक डॉक्टर लुई ब्रेल, अंग्रेजी के महाकवि मिल्टन आदि को भुलाया ही नहीं जा सकता। इस तरह यह विभूतियां हैं जो हमारे सामने एक आदर्श प्रस्तुत करती है कि विकलांगता यह कोई अभिशाप नहीं है। विकलांगता पर हम विजय पाकर एक नई दृष्टि, नई सृष्टि निर्माण कर सकते हैं, जो सकलांग होने के बाद भी दूसरे कर नहीं सकते। साहित्य की दृष्टि से यदि अब हम विकलांग की बात करें, क्योंकि हम दिव्यांग विमर्श या विकलांग विमर्श की बात कर रहे हैं, तो दिव्यांग विमर्श या साहित्य की दृष्टि से यदि हम बात करेंगे तो हम साहित्य में देखते हैं कि हंसी के पात्र के रूप में मनोरंजन के लिए हास्य रस के कवियों के द्वारा हास्य रस के प्रहसनों में इनका प्रयोग किया गया, लेकिन वर्तमान में ये करुणा जगाने वाले हो गए और इसलिए मानवता का तकाजा है कि इन निश्चित जनों को, विशिष्ट समर्थता को हम उनकी सेवा करें, उनके हम सहायता करें, सम्मान पूर्वक मानवोचित व्यवहार करें और इसी का आधार बनकर हमारे सामने दिव्यांग विमर्श आया। दिव्यांग विमर्श के प्रवर्तक डॉक्टर द्वारिका प्रसाद अग्रवाल जी की प्रेरणा से हुआ, इसकी इस दृष्टि से कि हमें लोगों की मानसिकता को, चेतना को बदलाव करना है। जो एक नकारात्मक समाज के मन में भाव है, जो एक समाज का बोझ माना गया है, या फिर समाज जिनको उपेक्षा तथा छुपाने की दृष्टि से देखता है, वो समाज का बहुत बड़ा अंग। अभी अनीता मैडम ने आपके सामने संख्याएं प्रस्तुत की, मदन मोहन अग्रवाल जी ने सामाजिक पक्ष का
विकलांगता को लेकर प्रस्तुत किया। तो साहित्य ही एक ऐसा माध्यम है कि जिसके द्वारा हम लोगों की चेतना, लोगों की मानसिकता को बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं और एक नया निर्माण कर सकते हैं। जैसे अभियांत्रिकी या इंजीनियरिंग के छात्र भौतिक नव निर्माण करते हैं, वैसे साहित्यकार मन परिवर्तन कर, चेतना जगाकर, अपने आप को हीन भाव से मुक्ति दिलाकर एक नया जोश, नई उमंग, नया मौका, नया अवसर, नवीन ढंग से पुनर्वास यदि वह किया जाए तो फिर वह एक महत्वपूर्ण होगा। और यह एक महत्वपूर्ण बात होगी तो इसी बात को एक आकार, विशिष्ट आकार, एक स्वरूप प्रदान किया हमारे इस वेबिनार के अध्यक्ष श्रद्धेय भाई डॉक्टर विनय कुमार जी पाठक ने। विनय कुमार जी पाठक और डॉक्टर द्वारिका प्रसाद अग्रवाल, इन दोनों ने मिलकर बिलासपुर के द्वारा दिव्यांग विमर्श की गंगा को प्रवाहित किया। नया विमर्श रहा और इसलिए यह एक हमारे सामने एक नया आदर्श भारतीय लोगों के सामने आया और अब तो यह पाठ्यक्रम का विषय बन गया है, यह अनुसंधान का विषय बन गया है, यह शोध का विषय बन गया है, सामाजिक सरोकार का विषय बन गया है। और इसलिए सब जगह सरकार के द्वारा भी, समाज के द्वारा भी जो कार्य हो रहा है, हम आरक्षण विकलांगों को या दिव्यांगों को दे रहे हैं, वो आरक्षण इसी चेतना के बदलाव की बयार है। मतलब हम उनके लिए सीढ़ियां बना रहे हैं, हम उनके लिए स्वतंत्र कोच दे रहे हैं, उनके चढ़ने उतरने का ख्याल रख रहे हैं, उनके पानी पीने के लिए, उनके प्रसाधन के लिए स्वतंत्र व्यवस्था कर रहे हैं। ये सारी जगह स्कूल, कॉलेज, पाठशाला, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हवाई जहाज, सब जगह ये हम उनको वह सुविधा दे रहे हैं। इसका कारण ऐसा हुआ कि साहित्य के माध्यम से वह विकलांगता के प्रति लोगों का मन में सेवा भाव जागृत हुआ। सेवा भाव को लेकर स्वामी विवेकानंद जी ने एक जगह लिखा है कि जो विकलांग तुम्हारे द्वार पर आया है वह परमेश्वर का स्वरूप है। तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हें प्रभु सेवा का अवसर मिल रहा है, तुम अपना भाग्य बना रहे हो। तो ये इस तरह की बात कही। आगे वे कहते हैं तुम सहायता नहीं कर रहे हो, सहायता तो ईश्वर करता है, तुम उनकी सेवा कर रहे हो। सेवा भाव परमो धर्म की बात विवेकानंद जी ने की और विवेकानंद जी की यह बात अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद का यह एक मोटो हो गया है। तो ये एक इस तरह की विशेष बात हमारे सामने आई है। विनय कुमार पाठक जी ने दिव्यांग विमर्श की धारा के लिए 5 सोपान निर्धारित किए हैं। वो 5 सोपान इस प्रकार है। लोगों में तथा दिव्यांगों में जागरूकता हेतु वातावरण का निर्माण करना। दूसरा है विकलांगों में सामर्थ्य तथा आत्मसम्मान का भाव विकसित करना। तीसरा है समाज को दिव्यांगों के प्रति दायित्व का बोध कराना। चौथा है समानता और मानवता का मूल्य संवर्धन करना। और अंतिम 5वां है विकलांग प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना, उन्हें उजागर करना। मेरे विचार से विकलांग विमर्श समाज को नई दृष्टि देने वाला, जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करने वाला आधुनिक विमर्श है, जो स्थान भेद, लिंग भेद, वर्ण भेद से परे मानवता का शिवत्व रूपी कल्याणकारी भाव है। इसलिए यह एक जनतांत्रिक विमर्श है, भाईचारे को बल देता है। दिव्यांग विमर्श के तत्व
जिनके आधार पर साहित्य का मूल्यांकन, गुणदोष निरीक्षण, विवेचन, विश्लेषण, आलोचना की जाती है, तो यह विमर्श या विचार है। उसमें कुछ तत्व है, वो तत्व की बात हम संक्षेप में इस प्रकार कर सकते हैं कि पहला तत्व है विकलांगों के जीवन का यथार्थ अंकन। आधुनिक विमर्श, साहित्य के जितने भी वैचारिक विमर्श है, चाहे वो दलित हो, स्त्री हो, आदिवासी हो, कृषक हो, वृद्ध हो, किन्नर हो, इन सब में का प्रधान तत्व है यथार्थ अंकन। कपोल कल्पित, अयथार्थ, काल्पनिक अंकन को इसमें कोई स्थान नहीं होता है। जैसे महादेवी वर्मा ने दिशा नामक रचना में, धर्मवीर भारती ने गुलकी बन्नो नामक रचना में यह वर्णन किया है, जिससे हमारे मन में एक बदलाव की संवेदना जाती है। दूसरा है संवेदनशीलता। दिव्यांगों के जीवन में आशा का संचरण कर कुछ न कुछ कर पा सकने की स्थिति, परावलंबिता के बोध से वह निराशा से भर जाता है। इसलिए उसको मैं संवेदना जगाकर वह हताशा का भाव छोड़कर एक सकारात्मक भाव उसके मन में जाग जाता है। समाज के लिए वह एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है। चौथा है विकलांगों को मुख्य धारा से जोड़ना। दिव्यांग लोग समाज का अभिन्न अंग है। वे समाज से निष्कासित एकाकी जीवन जीने को विवश नहीं है, इस बात का एहसास यह विमर्श कराता है। समाज में उन्हें उचित सम्मान देना, जैसे कोई आयोजन हो, सामाजिक आयोजन, धार्मिक आयोजन, तो उनको प्रमुख वक्ता, प्रमुख अतिथि या प्रमुख कार्य करने का सम्मान देना, उनके परिवार को बसाने में मदद करना, विभिन्न परीक्षाओं, प्रतियोगिताओं में अर्जित सफलता को सम्मानित करना, इस तरह का कार्य कर उनको मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। अगला है दिव्यांग जनों को प्रेरणादायी जीवनानुभवों को लोगों के सामने प्रस्तुत करना। दिव्यांग व्यक्ति केवल उपेक्षा का पात्र नहीं है, तो उनका जीवन, उनके जीवन यापन की प्रणाली, समूचा समाज को विशेषकर सकलांगों को प्रेरणा देता है कि इन्होंने किस तरह उस दिव्यांगता पर, उस दुर्बलता पर विजय पाई और किस तरह आशा का दीप बनकर समाज का पथ प्रदर्शन किया। तो जैसे भक्त शिरोमणि सूरदास जी, जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया था, पंजाब नरेश महाराजा रणजीत सिंह जी, नर्तिका सुधा चंद्रा, हेलन केलर आदि की अनेक जीवनियां, उनका जीवन चरित्र लोगों को सामने प्रेरणा बनता है, एक आदर्श बनता है। अगला है पुनर्वास के लिए समाज का ध्यान आकृष्ट करना। दिव्यांग जनों का आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक किसी भी तरह का पुनर्वास जो करना है, मैं पुनर्वास करने के लिए समाज को तैयार करना और उनको आत्मनिर्भर बनाना और उनको एक व्यक्तित्व प्रदान करना, एक आधार बनाना, एक तरह का नाम बनाना, कौशल देना, उनको परावलंबित्व जाकर आर्थिक रूप से वे स्वावलंबी हो जाए, इस तरह की बात यदि हम करें तो फिर वह बहुत ही अत्यंत उपयोगी ये बात होगी। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, गिरीश पंकज की ये पंक्तियां हैं, निश्चित हमारे ही परिजन है, इनका हम सम्मान करें, अपने जीवन के जैसा ही उन सब का उत्थान करें। दृष्टि श्रवण बाधित हो या फिर उपजा हो अस्थि विकार, कुष्ठ रोग से पीड़ित हो या मंद बुद्धि लाचार,
सबको मिले बराबर अवसर, देखिए, सबको मिले बराबर अवसर और सभी अधिकार। मुझे बोलने का अवसर दिया, इसलिए मैं आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, आपका अत्यंत आभार। आपने अत्यंत ही रोचक तरीके से पौराणिक कथाओं और पुराणों के माध्यम से दिव्यांग की विभूतियों का ज्ञानवर्धी विश्लेषण दिया। मुझे आशा है कि आपके द्वारा बताए गए 5 सोपानों पे समाज का हर व्यक्ति अपना योगदान देगा। इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हुए मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर चंपा सिंह, प्रोफेसर BHU वाराणसी को उनके भाषण के लिए, जिसका शीर्षक है खनिजन नयन सूरदास की समीक्षा। चंपा मैम, आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए। चंपा मैम, वो माइक वाला ऑप्शन होगा, उसको अनम्यूट कर लीजिए। दीप्ति मैम, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मैम, आपके स्क्रीन पे वो माइक का ऑप्शन होगा, उसको आप एक बार क्लिक करेंगे तो अनम्यूट हो जाएगा। मैम के साथ कोई है क्या? हो जाता काम के। हेलो हेलो, हाँ, अभी आ रही मैम। अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद बिलासपुर एवं शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी वेबिनार में उपस्थित सारे विद्वतजनों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। दिव्यांग विमर्श की प्रासंगिकता की संयोजिका डॉक्टर अनीता अग्रवाल, डॉक्टर MA अग्रवाल को मैं धन्यवाद व शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मुझे दिव्यांग विमर्श की प्रासंगिकता पर बोलने का अवसर प्रदान किया। आज कोविड-19 में यदि देखा जाए तो दिव्यांग विमर्श की जो प्रासंगिकता की राष्ट्रीय संगोष्ठी आप लोगों ने यहाँ पर रखा है, इस रूप में प्रासंगिक और सार्थक है कि कहीं न कहीं हम भी अपने आप को विकलांग ही महसूस कर रहे हैं, अपने आप को दिव्यांग ही महसूस कर रहे हैं। ऐसे अवसर पर हमें खंजन नयन के सूरदास की वह बात याद आती है कि विश्वास और आस्था के द्वारा ही हम इस संकट से उबर सकते हैं। वास्तव में अमृतलाल नागर प्रेमचंद्र के अनुयायी हैं। किसी भी कृतिकार की जो ख्याति है वह उसके प्रसार प्रसार से नहीं होती है, बल्कि कालजयी कृति से होती है, और उनकी कालजयी कृति मानस का हंस और खंजन नयन है। मानस के हंस में गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवन गाथा को प्रस्तुत करने के उपरांत उसकी जो अगली कड़ी है वह खंजन नयन है। खंजन नयन में सूरदास जी के जीवन गाथा को प्रस्तुत किया गया है, और यह उपन्यास अपने समकालीन परिवेश और युग बोध को समेटे हुए है। इसकी रचना नागर जी ने 1981 में किया है। अंधेपन, सूर के अंतर्वाय छटपटाहट, जिज्ञासा की प्रवृत्ति और जिजीविषा को उन्होंने बड़ी बारीकी से उद्घाटित किया है। इस उपन्यास को लिखने की प्रेरणा नागर जी को जैसलमेर के किला में एक अंधे गाइड से मिली। हेलो, हमारी आवाज आ रही है? हेलो मैम, यस मैम, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है? यस मैम, आ रही है। यस मैम, बोलिए। इस उपन्यास को लिखने की प्रेरणा
नागर जी को जैसलमेर के एक किले में अंधे गाइड से मिली। उन्होंने लिखा है कि जब 1914 में वह जैसलमेर का किला देखने के लिए गए थे तो वहीं पर 3 गाइड थे। 3 गाइड में से एक अंधा गाइड था। उन्होंने लिखा है कि अंधे गाइड को मैंने इसलिए लिया कि अंधा गाइड किस प्रकार से गाइड करेगा, और अंधे गाइड ने दीवालों पर खींचे गए नक्काशी, एक एक फूल, एक एक चित्र, यहाँ तक कि एक दृश्य में जल विहार और शाम के दृश्य का उसने जिस तरह से बड़ी बारीकी और बखूबी समझाया, उसको देख करके मैं आश्चर्यचकित हुआ। उसको देख करके मैं बहुत ही कर्तव्य विमूढ़ हो गया। अंधे आंखें न होते हुए भी उसके पास जो दिव्य दृष्टि थी, उसी ने मुझे खंजर नयन लिखने के लिए प्रेरित किया। खंजर नयन जीवनी नहीं है, बल्कि यह एक जीवनी परक उपन्यास है। इस जीवनी परक उपन्यास में नागर जी ने सूरदास जी के जीवन गाथा को अपनी कल्पना के द्वारा इस तरह से सजाया और संवारा है कि वह जीवनी से भी ज्यादा प्रामाणिक जान पड़ता है। इसमें स्वाभाविकता को जानने के लिए उपन्यासकार नागर जी ने सूरदास जी की रचनाओं से संबंधित जितने स्थान थे सबकी उन्होंने यात्राएं की, इतिहास और साहित्य को पढ़ा और सूरदास की रचनाओं में उन्होंने गहराई से झांका है। यही नहीं, 1.5 वर्ष की साधना के उपरांत उन्होंने सूरदास जी की निर्माण स्थली पारसौली में रह करके इस उपन्यास को पूरा किया। उपन्यासकार नागर जी के मन में सूर के प्रति, अपने महाकवि के प्रति जितनी श्रद्धा, निष्ठा, कर्तव्य की भावना और समर्पण की भावना है, उसे उपन्यासकार उपन्यास के माध्यम से देख सकते हैं। वास्तव में खंजर नयन में किसी अंतर संघर्ष, सूर के अंतर संघर्ष की मौलिक जो कथा है उसी को इसमें प्रस्तुत किया गया है। सूर का मानव मन और काम मन के अंतर संघर्ष को बड़े ही बारीकी से नागर जी ने इसमें उद्घाटित किया है। सूर का श्याम मन जहाँ एक ओर कृष्ण के प्रति सत्यनिष्ठ भाव से उन्मुख होता है, वहीं पर उनका जो काम की अतृप्त लालसा है वह तृप्त करने के लिए उन्हें उद्देशित करती है। सूरदास जी शरीर धर्म को स्वीकारते हैं, शरीर विकास को पहचानते हैं और युवा अवस्था में प्राप्त होने पर सभी लोगों के मन में जिस तरह से काम की भावना उत्पन्न होती है, उसी तरह से उनके मन में भी काम की भावना उत्पन्न होती है। एक रात्रि जब सूर के शरीर का स्पर्श कंतों के शरीर से हो जाता है तो कंतों सूर उत्तेजित हो जाते हैं और कंतों को अपने आलिंगन पास में बांधना चाहते हैं। कंतों उस समय उन्हें हनुमान का स्मरण कराते हैं। हनुमान का स्मरण कराने पर सूरदास जी करुणा विगलित हो जाते हैं, करुणा से ओतप्रोत हो जाते हैं और फूट फूट करके रोने लगते हैं। सूर का श्याम मन कंतु से कहता है कि जो सुख मैं पाना चाहता हूँ यही भाग्य ने नहीं मुझे दिया, जो सुख मैं पाना चाहता हूँ यही भाग्य ने मुझे नहीं दिया, और जो सुख भाग्य भोगना चाहता है वह मैं उसे नहीं दूंगा। सूरदास के इसी अंतर संघर्ष की मूल कथा को नागर जी ने विस्तार दिया है। जीवन के अंतिम पड़ाव पर कंतों की मुलाकात सूर से होती है और सूर कंतों भी उसकी तरफ आकर्षित होती है। सूर को जीवन की लालसा की प्यास ही उन दोनों की समस्या है। सूर को न तो आंखें मिली न तो तुम मिले, यानी श्याम नहीं मिले। जीवन की कोई भी जो लालसा है, जीवन की कोई भी इच्छा सूर को प्राप्त नहीं हो सकी। इधर कांतों को भी यदि कुछ मिला है तो तिरस्कार मिला है, घृणा मिला है, नफरत मिली हुई है, सब कोई दुर्दुरावे है, उससे घृणा करत है। और सूरदास अपने दुर्भाग्य की दूसरी प्रतिमूर्ति कांतों को देखकर उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। और कांतों भी मेरी किनारों तो हो स्वामी जी, कांतों सूर को छोड़ती नहीं है। और कंतों का प्रेम इस कोटि का है कि न तो वह सूर को जाति पाति को में बाधक बनना चाहती है और न तो वह
शिव ईश्वर के प्रति जो भक्ति है उससे विमुख करना चाहती है। कंतों का सान्निध्य सूर को अधिक से अधिक ईश्वर की तरफ विमुख करता है। सूर का जो मन है वह काम और राम के अंतर द्वंद्व से गुजरते हुए अंत में राम की प्राप्ति करता है। यहाँ भी आप देखिए कि जिस तरह से कि मानस के हंस में नागर जी यह कहना चाहते हैं कि यदि तुलसीदास जी को ज्ञान मिला तो रत्नावली के द्वारा मिला, यहाँ पर भी खंजन नयन में भी सूरदास जी यही कह नागर जी यही कहना चाहते हैं कि यदि सूरदास को काम से राम और कृष्ण की ओर उन्मुख होते हैं या राम या कृष्ण को प्राप्त करते हैं तो वह कंतों के कारण वह एक स्त्री के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। यहाँ पर कंतों का जो प्रेम है वह शुद्ध पहले सूर का आकर्षण जो कंतों के प्रति था वह वारुणी जैसे था, लेकिन अब वही बदल करके अमृत के समान हो गया है। कंतों के प्रति सूर का जो आकर्षण है वह विशुद्ध निष्काम प्रेम के रूप में बदल गया है। वह सूर का जो काम है अब वह काम नहीं रह गया है, काम ही राम हो गया है। यहाँ पर कंतों का सामीप्य, कंतों का सानिध्य सूर के लिए एक चुनौती बन गया है। जो कुछ भी हो अग्नि को साथ में लेकर के तपना ही सच्ची तपस्या है। वास्तव में नागर जी अपनी कामना में, अपनी कल्पना में जिस संघर्षरत सूर को भावनात्मक भूमि पर उभारना चाहते हैं वह कंतों जैसे कुरूप तिरस्कृत स्त्री के संपर्क में आने के बाद ही संभव हुआ है। इसमें जो सूर का जो एक रूप है, सूर का जो खंजन नयन में एक रूप उभार करके आता है, वह आता है कि प्रेम बड़ो सिद्ध मंत्र, कि प्रेम ही सबसे बड़ा मंत्र है और उनके लिए जो अंधत्व है वह बहुत बड़ी साधना है। सूरदास जी जीवन को मिथ्या नहीं बल्कि वह सत्य समझते हैं। अंत में उपन्यास के अंत में सूरदास जी उपन्यास के अंत में नागर जी के सूरदास जी माधुर्य भाव से प्रेरित होकर के अपने इष्ट देव को प्राप्त करते हैं। खंजन नयन रूप रस माते, तन से आंखें न होते हुए भी दिव्य दृष्टि संपन्न, मन की आंखों में रूप रस मस्त होकर के, रूप रंग में मस्त होकर सूरदास जी चपल चतुर नेत्रों वाले अपने इष्ट देव को प्राप्त करते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि खंजन नयन के माध्यम से नागर जी ने विश्वास और आस्था पर ज्यादा बल दिया है। उनका कहना है कि विश्वास और आस्था ही ऐसा एक सूत्र है, ऐसा एक प्रेम की भावना है जो इस संसार रूपी पूरे संसार को एक सूत्र में बांधे रखता है। प्रेम और आस्था ही ऐसा है जो वर्तमान इस कोरोना की संकट में पूरी संसार को सफल जीवन है। से भी नहीं कटता, विश्वास लाख हथौड़ों के चोटों से भी नहीं कटता। नीलकंठ के समान विश्वमन करने पर भी वह अजर और अमर रहता है। विश्वास के द्वारा ही शक्ति की भावना पैदा होती है। इसलिए यदि देखा जाए तो खंजन नयन में जो सूर का उद्घोष है कि विश्वास और आस्था के द्वारा ही इस संकट की घड़ी को पार किया जा सकता है। विश्वास और आस्था के द्वारा ही कोविड-19 जैसे जो महामारी है उससे पार हुआ जा सकता है। कोविड-19 जैसे जो अंतर्द्वंद की स्थिति में हम जी रहे हैं, अंतर और बाह्य की स्थिति में जी रहे हैं, विश्वास और श्रद्धा के द्वारा ही उस अंतर्द्वंद की स्थिति से गुजरते हुए जिस तरह से कि सूरदास जी अपने इष्ट देव को प्राप्त करते हैं, उसी तरह से खंजन नयन के द्वारा हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने भीतर विश्वास जगाना चाहिए। और यदि दूसरे शब्दों में कहूँ तो खंजन नयन में जो सूर का उद्घोष है कहीं न कहीं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घोष के समान लगता है कि भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मैं शुक्रिया और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
हमें विश्वास और आस्था की शक्ति के प्रतीक और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास के जीवन के विभिन्न पक्षों और उनके अंतरसंगत से अवगत करवाने के लिए सती कहा गया है, भक्ति की शक्ति सबसे ऊपर होती है। आगे बढ़ते हुए मैं श्रृंखला की अंतिम कड़ी के रूप में सादर आमंत्रित करना चाहूंगी प्रोफेसर जितेंद्र सिंह का उनके संक्षिप्त भाषण के लिए, जिसका शीर्षक है दिव्यांग विमर्श की कहानियां। सब देख रहा है, खत्म हो गया। मेरी आवाज जा रही है। हेलो 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 हेलो। हाँ यस सर, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा ओके, थैंक यू। हाँ। अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद बिलासपुर और शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय बिलासपुर के तत्वावधान में आयोजित इस एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार में आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करते हुए इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे श्रद्धेय गुरुवर डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मिस्टर दिवाकर मिश्रा जी, साथ ही संगोष्ठी के संरक्षक डॉक्टर BS चावला जी, संयोजिका डॉक्टर अनीता अग्रवाल जी और समन्वयक डॉक्टर ML अग्रवाल जी। मुख्य वक्ताओं में प्रोफेसर चंपा सिंह जी, डॉक्टर सुरेश माहेश्वरी जी, इस अखिल भारतीय चेतना परिषद के महामंत्री मदन मोहन जी अग्रवाल, डॉक्टर अनीता सिंह जी, समस्त ऑर्गेनाइजिंग समिति, विद्वान श्रोतागण, छात्र और छात्राएं। अभी तक जो इस विकलांग जो दिव्यांग जनों पर जो वार्ता हुई, बहुत कुछ कहा गया। डॉक्टर सुरेश माहेश्वरी जी ने दिव्यांगों की विभूतियों के ऊपर बहुत ही सारगर्भित और ज्ञानपूर्ण व्याख्यान दिया। प्रोफेसर चंपा सिंह जी ने खंजन नयन के ऊपर जो है अपना बहुत ही ज्ञानपूर्ण व्याख्यान। अनीता सिंह जी ने विकलांगों के बारे में चर्चा की। साथ ही अग्रवाल जी ने अखिल भारतीय चेतना परिषद की जानकारी दी। सबको ध्यान में रखते हुए मुझे डॉक्टर स्वर्गीय द्वारका प्रसाद अग्रवाल जी की भी याद आती है। जब मैं सर्वप्रथम रायपुर में आया था तो डॉक्टर साहब और गुरुवर विनय कुमार पाठक जी मुझे लेने के लिए आए थे, तो मुझे उनकी स्मृति, उनकी छवि जो है स्वर्गीय द्वारका प्रसाद अग्रवाल जी की स्मरण हो रही है कि इस जो विकलांग चेतना पर इन लोगों ने जो कार्य किया वह देश में एक अनूठा कार्य है और यह कार्य जो है आगे भी होगा और प्रगति को छुएगा। मेरा जो विषय है वह मैंने कुछ कहानियों के माध्यम से विकलांग या दिव्यांग जनों की अनुभूतियों को समझने का प्रयास किया है। इसमें कुछ 16 कहानियों का मैंने विश्लेषण किया है। इसमें से कुछ प्रमुख कहानियों पर मैं चर्चा करूंगा। उसके पहले जब हम देखते हैं कि जो विकलांगता के जो सारे प्रकार हैं उसमें शारीरिक विकलांगता को तो हम देख सकते हैं, लेकिन कि जो मानसिक विकलांगता है जिसको पहचाना जाना बहुत मुश्किल कार्य होता है। मानसिक विकलांगता का कारण एवं विकलांगता का स्तर जो है एक शोध का विषय है। विकलांगता के संदर्भ में कुछ लोगों की धारणा बहुत गलत और अंधकार या अंधविश्वासपूर्ण होती है। कुछ लोग विकलांगता को पूर्व जन्म के कर्मों का फल भी मानते हैं, लेकिन आज बदलते आधुनिक युग में व्यक्ति ने नई वैज्ञानिक तकनीकों
और चिकित्सा शास्त्र की उपलब्धियों से इस पर काफी काबू पा लिया है। आने वाली पीढ़ी अब बहुत ही जागरूक हो गई है। अब विकलांगता को अभिशाप मानने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन कमतर होती जा रही है। ऋग्वेद की एक ऋचा के अनुसार या भी सचीर्भिर्षणा परा ब्रिज प्राणघम श्रोणम चक्ष एतवे कृत याभिर्वर्तिकाम ग्रासिताम पंचतम ताभिर्षु अतिभिरास्विना गतम। इसमें कहा गया है कि सृष्टि में जो भी अपंग, अंधे, लूले, लंगड़े, बहरे आदि हैं, वे समाज में घृणा के पात्र नहीं हैं। हमें उनके साथ सहृदयता पूर्वक मानवता का व्यवहार करना चाहिए। समाज से अपेक्षा है कि वे विकलांगों के प्रति सद्भाव रखकर उन्हें शिक्षित व पुरुषार्थी बनाएं। तो इतनी बड़ी शिक्षा हमारे ऋग्वेद में कही गई है कि हमें जो है विकलांगों को के प्रति सद्भाव रखना है, उन्हें शिक्षित करना है और उन्हें पुरुषार्थी बनाना है, न कि उनके ऊपर दया और उनको हे दृष्टि से देखना है। विकलांगता जिसे समाज ने समस्या के तौर पर ही देखा और समझा, उनकी नज़र में जैविक और जन्मजात विकृति के आगे यह कुछ भी नहीं, महज एक रोग, एक अभिशाप। विकलांग लोगों के संपूर्ण पुनर्वास पर आवाज लगाने वालों की तादाद अब गिनी चुनी और अनसुनी है। वो भी क्यों न, क्योंकि यह आर्थिक और राजनैतिक स्तर पर कम और कमजोर है। इसलिए बात चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजी रोटी की हो, उनकी जगह कहीं नहीं है। हम यहाँ पर जो है कुछ कहानियों का जिक्र करेंगे, जिनके माध्यम से हम देखेंगे कि किस तरह से साहित्य में विकलांगता की चर्चा की गई है और इन कहानियों में जो भी विकलांगता की बातें हुई हैं उसके कारण क्या हैं और उस पर हम किस तरह से अपना उसके निवारण के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। एक कहानी है पोलियो, जिसके कहानीकार हैं कुलदीप, और इसमें जो विकलांगता का जो प्रकार है शारीरिक प्रकार है। मणिका नाम की एक लड़की जिसकी एक टांग पोलियो से ग्रसित है, जिसके कारण मनीष की माँ उसे पसंद नहीं करती और उसकी शादी टूट जाती है। तो ये विकलांगता का कारण है, शारीरिक विकलांगता का कारण है, जिसकी वजह से किस तरह से लोगों की जो मानसिक स्थिति है उसका जो वैवाहिक जीवन टूट जाता है। दूसरी कहानी जो है परकटा परिंदा है, जिसको गिरिराज शरण अग्रवाल ने लिखा है। ये भी शारीरिक विकलांगता की कहानी है। इसमें जो कहानी का जो मुख्य पात्र विभू है, उसका सड़क हादसे में दोनों पैर गंवा बैठता है। तो बहुत सारी जो विकलांगता के कारण है वह दुर्घटना भी है, जिसमें लापरवाही है। इसमें ड्राइवर की लापरवाही से यह काम होता है। अब विधु जो है पराश्रित हो जाता है, उसके सारे सपने, सारी सोच पर पानी फिर जाता है। फिर भी वह उम्मीद नहीं छोड़ता है। वह कहता है अपनी दीदी से कि दीदी यहाँ कितनी घुटन लग रही है, देखो ना उन बच्चों को, वे कितने उल्लास से दौड़ते हुए स्कूल जा रहे हैं। दीदी मैं चल नहीं सकता, दौड़ भी नहीं सकता, दीदी तुम मुझे उस भीड़ में भरे बाजार में रखो जहां लोगों को मैं उनके पैरों पर चलता हुआ देख सकूं। तो ये जो जिजीविषा है, एक विकलांग या दिव्यांग के अंदर जो जीने की इच्छा है, इस कहानी इसको जो है दर्शाती है। अगली कहानी है रोशनी से दूर, जिसके जो कहानीकार हैं वह छत्रपाल जी हैं और इसमें भी जो है शारीरिक विकलांगता की बात बताई गई है। इस कहानी में एक व्यक्ति जिसे पोलियो ने अचानक धर दबोचा है, जिसके कारण उसकी पूरी जिंदगी तो बदतर हो गई है, साथ ही साथ माँ और नानी का जीवन भी उसकी चिंता में असमय दुख और परेशानियां झेलते समाप्त हो गया है। उसी व्यक्ति को एक दिन दूसरे व्यक्ति, जिनका बेटा भी गरीबी के कारण एक हाथ और
दोनों पांव से अशक्त हो गया है, उससे मिलने के लिए बहुत विनय पूर्वक लेकर घर जाते हैं। इससे उनके बच्चे को भी साहस और प्रेरणा मिलेगी। तो कुछ विकलांगता के कारण जो है गरीबी भी है। तो ये कहानी जिसमें विकलांगता का जो कारण है वह गरीबी है। अगली कहानी है पड़ाव, जिसको नफीस अफरीदी ने लिखा है। इस कहानी का जो संक्षेप में आप देखेंगे कि यह एक पारिवारिक कहानी है। इसमें असलम, उसके अब्बू, अम्मी, अद्दा, उसकी पत्नी और बेटा सीमा है। असलम की शादी उसकी खाला की बेटी शाहीन के साथ हो जाती है। उसका एक बेटा राजा और बेटी अरसी है। पहले वह ससुराल में रहता है, पर जब सड़क हादसे में अद्दा के पांव चले जाते हैं, यहाँ भी जो है दुर्घटना जनित विकलांगता है, और जिसके कारण पूरा परिवार जो है वह बिखर जाता है और परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक कहानी है समापन, जिसका शीर्षक है कहानी का, और नरेंद्र नागदेव जी ने लिखा है इस कहानी को। इसमें बबलू नामक उस बच्चे की कहानी है जो जन्मजात कमजोर और अपंग है। बहुत इलाज के बावजूद भी उसके स्वास्थ्य पर कोई परिवर्तन नहीं होता। अंत में उसकी इस स्थिति से उसका बाप ऊब जाता है। जब बबलू एक दिन बहुत बीमार होता है और वह डॉक्टर को बुलाने के लिए जाता है, लेकिन डॉक्टर के पास पहुंच करके भी उसका पिता डॉक्टर से कुछ नहीं कहता, क्योंकि वह बिल्कुल इस बीमारी से तंग आ चुका है, परेशान हो चुका है। डॉक्टर पूछता है कि क्यों आए हो? वह कहता है कि कुछ नहीं सर, वैसे ही आ गया, रविवार था, मैंने सोचा साथ बिताएंगे। तो विकलांगता इतनी साधारण सी बात नहीं है, इतनी भयावह स्थिति है। इसके कारण जो विकलांग व्यक्ति है वह तो परेशान होता ही है, उसके साथ पूरा परिवार भी उससे परेशान हो जाता है। तो ये इसके ऊपर हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगली एक कहानी है अमीबा। अमीबा कहानी है जिसके कहानीकार हैं निरुपमा श्रीवास्तव, और इसमें भी जन्मजात शारीरिक विकलांगता की बात है। कहानी में एक संपन्न घर में जन्मे नवजात शिशु जो जन्मजात नपुंसक है। माँ बाप उसे पालने में अपनी बदनामी महसूस करते हुए वो लोग सोचते हैं कि इसको कैसे पालें पोसें, और वह एक किन्नर को, एक हिजड़े को बुला करके उसको देना चाहते हैं, पैसा देते हैं कि तुम इसको ले जा करके इसका पालन करो। लेकिन वह उन लोगों को ही पालने के लिए कहता है। इस पर वह कहते हैं कि अगर तुम नहीं ले जाओगे तो हम इसे दूसरे को दे देंगे। इस पर वह किन्नर है, हिजड़ा है, वह बिना पैसे लिए उस बच्चे को ले जाता है पालने के लिए। तो इससे आप देखिए कि वह कहता है कि साहब, जैसे लूले लंगड़े को काम सिखा, वैसे ही हम जैसों को भी कुछ सिखा, बाकी जो नहीं है उससे पेट का क्या। तो ये जो किन्नर विमर्श है चल रहा है आजकल, वो भी मुझे लगता है कि ये भी एक विकलांगता का ही एक स्वरूप है, उसी से उपजा हुआ ही यह विमर्श है। इस पर ये कहानी जो अमीबा है। आगे अगली जो कहानी है आधा हाथ पूरा जीवन। यह कहानी निस्तर खानकाही ने लिखा है और शारीरिक विकलांगता है इसमें, और इसका जो कारण है वह सामाजिक कारण है। आप देखेंगे कैसे है। यह कहानी मीरिया साइमन नामक एक ऐसी लड़की की है जो पढ़ लिख कर अच्छे से अपना जीवन यापन कर रही थी, लेकिन समाज में रहने वाले कुछ दरिंदे उसके जीवन को नरक बना देते हैं। वे उसकी अस्मत लूटना चाहते हैं, लेकिन वह डटकर मुकाबला करती हुई अपना एक हाथ खो देती है, इस प्रकार अपंग हो जाती है। तो ये सामाजिक कारण की वजह से विकलांगता होती है। इसके सबके बावजूद भी वह हौसला नहीं छोड़ती है, उसमें आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की अदम्य इच्छा शक्ति है। उसे किसी की दया और सहानुभूति से घृणा है। वह कहती है, मुझे पापा की उपस्थिति से उलझन होती है, उनसे भी, उनके दोस्तों से भी। अपने आप से बात कहने की मुद्रा में धीरे से उसने कहा, इन सभी की आंखों में मेरे लिए जो सहानुभूति और दया का भाव है उससे मुझे घृणा है। मैं यह सहन नहीं कर सकती कि लोग मुझ पर तरस खाएं।
चाहे वह पापा ही क्यों न हो, लेकिन मैं उन्हें कैसे रोक सकती हूँ। इस कहानी में दो तरफ की बातें हैं। एक तरफ तो वह लड़की जो अपंग होते हुए भी आगे बढ़ना चाहती है, दूसरी तरफ उसके पिता और भाई उसको साहस देने की जगह उस पर दया दिखाते हैं। तो ये जो दया, सहानुभूति, ये सब दिखाने की जगह उनको, जो भी दिव्यांग हैं, उनको प्रोत्साहन देना और उनको आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करना, यह जो है इस समय की मांग के अनुरूप और उनको उत्साह देने के लिए, उनको सुख प्रदान के लिए यह बेहतर चीज है। अगली कहानी है अन्ना कहानी है, जिसमें जो पानू खोलिया ने लिखा है। शारीरिक विकलांगता है जो बीमारी के कारण उत्पन्न हुई है। आप देखेंगे कि यह कहानी अन्ना नामक लड़की की है। जब वह 5 साल की थी तभी से वह मूर्छा मतलब मिर्गी की असाध्य बीमारी से ग्रसित हो जाती है। पिता बसंत और माता उसे लेकर दर दर की ठोकर खाते हैं, फिर भी कोई फायदा नहीं होता। बसंत प्रोफेसर है, फिर भी इलाज का खर्च और अन्य 2 बच्चों के परवरिश के चलते आर्थिक हालत भी हमेशा तंगिस में रहती है। अन्ना के इलाज के खर्च से वे इतना परेशान हो जाते हैं कि उन्हें अपना कॉलोनी का घर छोड़कर एक निम्न स्तर के इलाके में घर लेना पड़ता है। अंत में माँ भी तंग हो जाती है। तब अन्ना पानी के लिए चिल्लाती है तो वह बोल पड़ती है, क्या है डायन? फट पड़ी उमा, कब तक वसूलना है तेरे को, कब तक सताना है हमको नास पिट्टी। इस तरह की बात, मतलब जब घर में कोई इस तरह की विकलांग या ऐसे हो जाते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं। लेकिन इसमें परेशान तंग होने की बात नहीं है, उनके प्रति जो है सेवा भाव और सहानुभूति रखनी होती है। भीष्म साहनी की कहानी कंठहार है। कंठहार जो कहानी है भीष्म साहनी की शारीरिक विकलांगता की कहानी है, जो इसमें भी बीमारी कारण है। यह कहानी एक सुषमा नामक लड़की की है जो असाध्य रोग से पीड़ित है एवं शारीरिक रूप से विकलांग है। उसकी विकलांगता की वजह अर्थात दिन रात उसकी सेवा और देख रेख में ही व्यस्त रहने से माँ मालती भी हिस्टीरिया से ग्रस्त हो जाती है। अब वह बेटी पर ध्यान नहीं देती, अब अपनी खुशियों के लिए ही सब कुछ करती है। ये जो कहानी है इसमें बीमारी के कारण जो है वह विकलांगता होती है। अगली कहानी राजेंद्र कौर की है, लुंज कहानी का शीर्षक है। और लुंज कहानी इंदु और उसकी 3 बहनें नीतू, प्रीति, सोनू और उसके माता पिता पर केंद्रित है। कैंसर के कारण पिता की दाईं बांह काटनी पड़ती है। एक तो बड़ा परिवार, दूसरे पिता भी विकलांग। वे बहुत मुश्किलों से किसी तरह परिवार चलाते हैं। वे अपनी बेटियों के लिए बहुत ऊंचे सपने देखे थे, किंतु बीमारी और गरीबी ने उनके सपने पर पानी फेर दिया। उन्हीं के शब्दों में, सोचा था इंदु को खूब पढ़ाऊंगा, परंतु उसका भविष्य तो अभी से लिखा गया है, साफ स्पष्ट है, सामने है। वह भी मेरे दफ्तर में क्लर्क लग जाएगी, वहीं काम करते करते ब्याही जाएगी। तो लोग बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन समय और परिस्थितियां क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। जैसे अभी जो संकट चल रहा है, इसके बारे में कभी कोई सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो इस तरह की स्थिति आती रहती है। अगली कहानी शैलेश मटियानी की एक कहानी है जिसका शीर्षक है हारा हुआ, जो मानसिक विकलांगता की कहानी है और जिसका कारण जो है सामाजिक कारण है। आप देखिए कैसे सामाजिक कारण है। इस कहानी के मुख्य पात्र पहलवान गंडामल हैं, जो पाकिस्तान हिंदुस्तान अलगाव के समय हिंदुस्तान आते समय खूनी बहसी दरिंदों से घिर जाते हैं। उनके सामने ही उन दरिंदों ने उनकी 8-9 वर्ष की बेटी कमली की स्मत लूट लेते हैं। इस घटना के कारण गंडामल मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं। तो ये देखिए कारण है, और किस तरह से सामाजिक जो दरिंदे हैं, जो उस तरह के विक्षिप्त लोग हैं, उनके माध्यम से की गई हरकत की वजह से एक अच्छा भला आदमी मानसिक रूप से विकलांग हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों से भी हमें निपटने की जरूरत है और ऐसे साहित्य की रचना की जरूरत है जो लोगों को अच्छे रास्ते पर चलने की सलाह दे। अगली कहानी है जिजीविसा, जिसके रचनाकार हैं
कहानीकार हैं सच्चिदानंद धूमकेतु जी। ये भी शारीरिक जो दुर्घटना और गरीबी के कारण उत्पन्न हुई है विकलांगता। यह कहानी गोविंदा और उसके पुत्र रमना पर केंद्रित है। गोविंदा बहुत ही गरीब है, यही गरीबी उसके विकलांगता का कारण बनती जा रही है। वह अब बेटे के ऊपर आश्रित हो जाता है। एक दिन बेटा राजनेताओं की बात सुनता है कि वे लोग असहाय लोगों के लिए सहायता करने वाले हैं। वह सुनकर गोविंदा बहुत खुश होता है, और लेकिन कोई राजनेता कोई सहायता की बात नहीं होती है। अंत में सब कुछ ये कोरा काम ही रह जाता है और उसका जो है दिल टूट जाता है। एक कहानी है अनिमंत्रित, सिमी हर्षिता की कहानी है, जो शारीरिक और मानसिक विकलांगता का कारण है, और इसका जो कारण है वह लापरवाही है। जैसे आजकल बहुत कुछ होता है, भ्रूण हत्या लोग कहते हैं, गर्भ में ही बच्चों की जांच करवाते हैं और उनको मार देते हैं। ऐसे इस पर आधारित यह कहानी है अनिमंत्रित। अनचाहे गर्भ को नष्ट करने की कोशिश मनु को शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर अशक्त बनाती है। इसका दोष आखिरकार गर्भवती मां के ऊपर ही जाता है, जिसे वह स्वीकार कर। इस बार किसी आकांक्षित मां के गर्भ से ही जन्म लेना, किसी अनचाहत, अनिच्छुक, निष्ठुर, अनुचित मां का द्वार मत खटखटा देना। तुम्हारी मां तुम्हारे प्रथम स्पंदन पर रोए न, वह किसी दवा, इंजेक्शन या ऑपरेशन से तुम्हारी हत्या करने की कोशिश न करे। तो ये भी एक सामाजिक कारण है। गरीबी और दुर्घटना होती है जिसके कारण बिना अनिश्चित जो संतान पैदा होती है और वह विकलांग हो जाती है। एक कहानी है अंधेरे का सैलाब, जो सुनील कौशिक की कहानी है। दुर्घटना और लापरवाही के कारण शारीरिक विकलांगता होती है। यह कहानी 6-7 वर्ष के बच्चे सौरभ की है, जिसकी सड़क दुर्घटना में दोनों आंखें चली जाती हैं और वह हमेशा के लिए अंधा हो जाता है। उसके मन में बहुत उत्साह है और वह ठीक होने के बाद बहुत सारी चीज़ों की डिमांड करता है और उसके माता पिता उसको पूरा भी करते हैं। आखिरी कहानी है सूर्यबाला की, जिसका शीर्षक है फरिश्ते। यह शारीरिक विकलांगता का प्रकार है और दुर्घटना और गरीबी इसका कारण है। इस कहानी में कुन्नू बाबू जो धनी परिवार से हैं, वहीं मटरुआ एक गरीब लड़का है। उसकी गरीबी ही उसे हर वक्त कुन्नू बाबू की गुलामी करवाती है, और कुन्नू बाबू की लापरवाही से ही मटरुआ एक दिन जो है वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, विकलांग हो जाता है, लंगड़ा हो जाता है। और कुन्नू बाबू वह सोचते हैं कि किस तरह से मटरुआ हॉस्पिटल से आएगा तो किस तरह से चलेगा। लंगड़ा लंगड़ा करके उसका नाटक करके हंसते हैं और सारे लोग हंसते हैं। उसकी माँ है वह भी वहाँ पर बैठी है, वो भी कुन्नू मटरुआ को लगता है कि वह भी हंसती है, लेकिन वह देखता है कि माँ अपनी सूखी हथेलियों में लुगरी की छोर से चेहरा ढांके हिलक हिलक कर रोती जा रही थी, और मैं समझता था कि वह भी सबके साथ हंस रही है। तो माँ जो है अपने बच्चे के ऊपर जो है वह रो रही है, और बाकी लोग जो है मजाक और उपहास का पात्र, जैसे सर ने बताया कि बहुत सारे उपहास के पात्र विदूषक साहित्य में या फिल्मों में इस तरह के विकलांग लोगों को रखा जाता। तो ये सारी कहानियां जो थी, इनके विश्लेषण के उपरांत हम ये देख सकते हैं, कह सकते हैं कि जितनी भी इसमें विकलांगता के कारण हैं, अधिकांश गरीबी, दुर्घटना, लापरवाही इसमें मुख्य कारण हैं। कुछ जन्मजात कारण भी हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए विकलांगता निवारण के कदम उठाए जा सकते हैं। भारत में लगभग बताए कि 3.25 करोड़ के लगभग जो विकलांग हैं, ये हताशा एवं निराशा में जी रहे। इनके बारे में सोचने की फुर्सत किसके पास है? सरकारी योजनाएं तो केवल कागजों तक ही सीमित हैं, पर इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। सरकारी कागजों में विकलांगों के लिए प्रयोग किया गया निःशक्त शब्द मानसिक रूप से इन्हें चोट पहुंचाता है। वहीं समाज भी इनसे उपेक्षापूर्ण व्यवहार करता है, जिससे ये मानसिक कुंठा के शिकार हो जाते हैं। इनकी व्यक्तिगत प्रतिभा का हनन होता है। उन्हें भी समान पूर्ण जीवन जीने का हक गरीब व्यक्ति
हमेशा मानसिक तनाव में मानसिक तनाव मानसिक रोग में बदल जाता है। गरीबी के कारण ही उचित उपचार भी नहीं मिल पाता है। गरीबी जिसके कारण ही स्वास्थ्य के अन्य पहलुओं पर बुरा असर पड़ता है। इन कहानियों के विश्लेषण से विकलांगता के जो कारण स्पष्ट हुए हैं वे काफ़ी हद तक सामाजिक और राजनैतिक स्तर पर दूर किए जा सकते हैं। बस ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो खुलकर सामने आएं और इस दिशा में अपना सहयोग सहर्षता से दें। संबंध में जो अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद बिलासपुर है, यह बहुत ही सहर्षता से अपना सहयोग दे रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं, जो बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही मैं आयोजकों का पुनः आभारी हूँ जो आपने हमें यह अवसर दिया, मौका दिया। विवेक सिंह राठौर जी और जो संचालिका हैं, आप सभी लोगों का आभार और बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आपका आभार कि आपने हमें विभिन्न कहानियों के माध्यम से शारीरिक और मानसिक दिव्यांगता के विभिन्न कारण और साथ ही साथ उनके संघर्ष और विभिन्न पहलुओं का अत्यंत ही भावपूर्ण विश्लेषण दिया। नाउ मूविंग अहेड, it's my privilege to invite our honorable chief guest, Mr. Diwakar Mishra, retired IFS officer, State Project Administrator, SPIU, to share his view. DP ma'am, I think Diwakar sir, due to some technical fault, Diwakar sir is not here now, so you can move ahead. Okay. With equal pleasure, I would like to request Honorable Chairperson, Dr. Vinay Kumar Pathak, to conclude the session. Vinay sir. सर का माइक ऑन करो ना। सर आपका माइक ऑफ है, ऑन करो। हाँ ऑन। हाँ हाँ हेलो। हाँ हेलो, यस सर। अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद बिलासपुर और इंजीनियरिंग महाविद्यालय बिलासपुर के संयुक्त तत्वावधान में विकलांगता पर आधारित विकलांग विमर्श की प्रासंगिकता, इस विषय पर जो हमने राष्ट्रीय वेबिनार ऐसे समय में किया है जब लोग कोरोना के अवसाद से जूझ रहे हैं और सृजन की ओर उन्मुख हो रहे हैं। ऐसे हमारे सृजन धर्मी साहित्यकार, अकादमिक व्यक्तित्व, प्राध्यापक, इंजीनियरिंग कॉलेज के हमारे प्राचार्य चावला जी, हमारे समन्वयक आदरणीय डॉक्टर एमएल अग्रवाल साहब, मदन मोहन अग्रवाल जी जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद के, डॉक्टर अनीता अग्रवाल जी जो संयोजिका हैं, और निश्चित रूप से पूरी वो टीम इंजीनियरिंग कॉलेज की, विवेक सिंह जी, दीपी सिंह जी, और हमारे मध्य अभी उपस्थित नहीं है लेकिन बहुत खुशी हो रही है कि आशुतोष मिश्रा जी का आशीर्वाद इस कार्यक्रम को मिला है। मुझे बहुत खुशी, हमने जिन 4-5 विभूतियों को यहाँ पर बुलाया है
वो सब के सब अपने अपने क्षेत्र में काफी काम जी। हेलो हेलो। हाँ Yes, sir. यस सर यस यस सर यस हाँ आ रही आवाज तो जी 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 तो ये सभी लोगों ने अपने विचार आज अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ के रूप में उन्होंने दिए हैं। हमारी इच्छा भी थी कि विकलांग विमर्श को न केवल साहित्यकार बल्कि इंजीनियरिंग कॉलेज के जो हमारे छात्र हैं वो भी उससे वाकिफ हो। इसीलिए हमने उस विषय को अकादमिक होते हुए भी जन सामान्य और सरस ढंग से बनाने के लिए उस तरह के चुनाव किए और लोगों से अनुरोध किया कि बच्चों के लायक भी उस अपने व्याख्यान को प्रस्तुत करें। एक दो बात मैं जरूर कहना चाहूँगा क्योंकि विमर्श का मतलब ही होता है भी यानी विचार। कोई विचार आता है तो मर्श परामर्श ये दोनों शब्दों से बना है, तो हम परामर्श करते हैं। तो कोई भी मुद्दा होता है साहित्य में, वही परामर्श के द्वारा विद्वानों के वाद विवाद के द्वारा तर्क वितर्क के द्वारा एक सिद्धांत पर एक सत्य के केंद्र पर पहुंचता है और उसी विमर्श को फिर आगे स्थापना मिलती है। हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में 20वीं शताब्दी के 6वें दशक में जहाँ स्त्री विमर्श को स्थापना मिली, आधी आबादी को जो एक उपेक्षा पूर्ण व्यवहार समाज में हो रहा था, साहित्यकारों ने स्त्री विमर्श के माध्यम से उसको ऊंचाई पर पहुंचाया और उसमें महिला साहित्यकार आगे आए और उनकी जो लेखनी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह विमर्श दलित और आदिवासी विमर्श, ये दोनों विमर्श यद्यपि जाति पर आधारित थे, लेकिन इन लोगों ने भी समाज की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए एक आंदोलनबद्ध ढंग से जो काम किया उससे ये भी केंद्रीय धारा में आ गए। मुझे बहुत खुशी है कि 2000 की शुरुआत में अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद की स्थापना होती है और उसी के साथ निःशक्त चेतना भाग 1 से लेके 7 भाग तक हमारे प्रकाशित है। उन सब में विकलांगता पर सामग्री है और विकलांग विमर्श का जो कच्चा माल है हमको वहां से मिलता है। बाद में उसको एक साहित्यिक रूप दिया जाता है और जैसे आप सब लोगों को मालूम है कि डॉक्टर DP अग्रवाल हमारे प्रेरणा पुरुष थे और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम उनकी श्रद्धांजलि बतौर हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति से अवरोध अवश्य आया है, लेकिन आप सब लोगों की सहानुभूति सहयोग से हमें ताकत और संबल मिल रहा है और आगे इस विमर्श को हम आगे ले जाएंगे। आपको मालूम है कि 5-6 हमने राष्ट्रीय और एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी अमलनेर महाराष्ट्र में डॉक्टर सुरेश माहेश्वरी जी के संयोजन में बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुई और 1 दर्जन से अधिक हमने पुस्तकें निकाली है और स्मारिका और बहुत सारे लेख, और ये सब के सब मिलकर शोध के लिए हम सामग्री देते हैं पूरे देश में। और मुझे खुशी है कि देश के बाहर के लोग भी हमारे इस आयोजन में, इस अभियान में विमर्श को आगे बढ़ाने के लिए हमें पूरी तरह से सहयोग दे रहे हैं। और मुझे खुशी है कि इसी ढंग से हमने राष्ट्रीय स्तर पर शोध पीठ स्थापित किया है और मैं चाहूंगा कि विकलांगों पर जो भी सामग्री है, आपको ऐसा लगता है आप लिख सकते हैं, कविता लिख सकते हैं, कविता लिखिए, कहानी, उपन्यास जो दूसरे लोग लिखे हैं उनको भी हमारे पास भेजें। 1-2 उदाहरण से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आप देखें कि अभी सारे वक्ताओं ने इस बात को बताया कि विकलांगों को हंसी के पात्र के रूप में, चाहे वो सिनेमा हो या साहित्य है, उसमें रखा जाता था। उसकी पीड़ा को, उसकी वेदना को, उसके संघर्ष को हम पार्श्व में रख देते थे। विकलांग विमर्श के आने के बाद आप देखें कि बहुत सारे फिल्मों में और बहुत सारे साहित्य में एक चेतना जागृत हुई है और हम यही चाहते हैं कि विकलांग भी सामान्य मानव के समान है, उनको सहानुभूति नहीं चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए।
और इसी ढंग से हम अपने सारे कार्यकलाप को विशेष रूप से साहित्य सृजन को केंद्र में रख के ये काम कर रहे हैं। लोग हंसते हैं, आप देखिए हमारे यहाँ के लोक साहित्य या लोकगीत में भी देखें तो आपको लगेगा कि केवल हंसी मजाक के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं, जैसे कि अंधा वेद पढ़ावे। तो आप देख लें कि आज राम भद्राचार्य जी वेद पढ़ा रहे हैं। इसी तरह से लंगड़ी नाच दिखावे, हंसते थे, सुधा चंद्रन हमारे साथ है। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि कहीं भी ऐसी बात नहीं है। जो पैर वाला आदमी है वो तो चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिना पैर वाला चले, ये पराक्रम का प्रकर्ष है, ये विशेषता है। और ये हमारे विकलांगों को इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने दिव्यांग की संज्ञा कि वो दिव्यांग है और एक न एक ऐसा अंग जो उसको परिपूरक के रूप में उसको ऊर्जस्वित करता है, और वो जब हम देखते हैं तो चमत्कृत हो जाते हैं। अभी विभूतियों की चर्चा हुई, विकलांग विभूतियों की, महेश्वरी जी ने भी की, जितेंद्र जी ने भी की। तो हमको लगता है कि ये विभूतियां भी दिव्यांग थी और समाज को उन्होंने अपने चरित्र के माध्यम से, उदात्तता के माध्यम से जो रास्ता दिखाया उसको हमको मानना चाहिए। तो मैं बहुत अभिभूत हूँ और पूरी टीम को पुनः बधाई देता हूँ, और जो हमारे साहित्यकार भाई लोग हमारे अनुरोध को सुनकर और उसको मानकर जो इस समय कोरोना के समय में अपना समय दिया और विकलांग विमर्श के चिंतन को उन्होंने आम जनता तक पहुंचाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें छत्तीसगढ़ के जीवंत विश्वकोश के रूप में अभिहित शब्द साधक को सुनने का सुअवसर प्रदान हुआ। I now request Dr. Anita Agrawal, social worker and guardian member, Akhil Bharatiya Viklang Chetna Parishad and convener of this program, to come for the vote of thanks. Anita ma'am. Good afternoon to one and all who are attending this webinar on Viklang Vimarsh ki Prasangikta, jointly organized by Akhil Bharatiya Viklang Chetna Parishad Bilaspur and Government Engineering College Bilaspur. I would like to thank even the of this national webinar, Diwakar ji, retired IFS and State Project Administrator, SPIU Chhattisgarh, for taking out his time and gracing us. I would like to thank Dr. Vinay Pathak, Chairperson of this national webinar, Director of Viklang Vimarsh, Rashtriya Shodh Peeth, for his valuable inputs and concluding the remarks. A special thanks to Madan Mohan Agrawal ji, National Guest Secretary, Akhil Bharatiya Viklang Chetna Parishad, for updating us regarding different activities going on throughout the year through this organization. I would like to thank Dr. Champa Singh, Professor, Banaras Hindu University, Varanasi, for delivering her lecture on Surdas ji. Our heartfelt thanks to Dr. Suresh Maheshwari, retired Professor, Pratap College, Amalner, Maharashtra, for delivering an informative talk on Divyang Vibhutiya and Divyang Vimarsh. A special thanks to Dr. Jitendra Singh, Associate Professor, Rajasthan University, Jaipur, for updating us regarding different stories about Divyang Vimarsh. I would like to thank Dr. Anita Singh, Lecturer, St. Xavier School, Bilaspur, for elaborating a detailed introduction in very simple language about Divyangita. From the core of my heart, I would like to deliver a special thanks to Dr. B.S. Chawla, patron of this national webinar and principal of Government Engineering College, Bilaspur, for his constant motivation, support, encouragement
Without your assistance, this program would not have been possible, sir. Thank you very much for providing us this platform. I would like to extend my thanks to the coordinator of today's webinar, Dr. M.L. Agarwal, for his valuable advice, which make my work very simple and help in smooth conduction of this program. A special thanks to Mr. Vivek Singh Rathore, Assistant Professor, for making all the necessary arrangement and logistic required for this webinar. I would also like to thank DP Singh Madam for anchoring this program. I am thankful to Akhil Bharatiya Viklang Chetna Parishad and Government Engineering College for holding this national webinar. At last, but not the least, I am thankful to the audience, dear students, invited guests, alumni, faculty, and one and all who are directly and indirectly involved in making this program successful. Thank you once again. Thank you so much, ma'am, for all your words. कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो हमें आपके साथ साझा करनी है. Few information are for students and few are for our guests. मैं अपने सारे अतिथियों को सूचित करना चाहूंगी कि आपको ईमेल के माध्यम से फीडबैक फॉर्म भेजा जाएगा. आपसे अनुरोध है कि आप वो फॉर्म फिल कर दें क्योंकि ये ई सर्टिफिकेशन के लिए बहुत ही जरूरी है. Another information is for all of our students. Don't forget to fill the feedback form to avail your e-certification. Related link has already been shared in the chat box. So all of you are requested to go to the link and fill the form. So, कहते हैं अंधेरे हो लाख घने पर अंधेरे अनंत नहीं, अंधेरे हो लाख घने पर अंधेरे अनंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं. With this, we come to the end of this session. Thank you one and all present here. हाँ दीपी, Yes sir. कुछ अगर अभी ऑनलाइन किसी को कुछ कमेंट करना हो या कोई क्वेश्चन हो सर हो ना, 2-4 ले लो. Okay, ठीक है. So, if you have any query, आप कुछ पूछना चाहते हैं. डॉक्टर ज्योति मिश्रा इन स्क्रीन. तो डॉक्टर ज्योति मिश्रा पूछना चाह रही हैं. अपना माइक अनम्यूट कर लें डॉक्टर ज्योति मिश्रा. डॉक्टर ज्योति आप अपना माइक अनम्यूट करें. ज्योति मैम वो स्क्रीन पे माइक. हाँ मैं अभी इतने लोगों का डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर विनय मोहन पाठक और मदन मोहन अग्रवाल, सुरेश माहेश्वरी सर, मैडम चंपा सिंह, इन सब का मैंने पूरा सुना और मुझे इस बात पर विश्वास हो गया कि आगे आने वाले समय में विकलांग विमर्श पर शोध की दशा एवं दिशा के नए आयाम बहुत से खुल जाएंगे. तो आज को मैंने स्पष्ट रूप से मैंने महसूस किया. हाँ. अब इसके बाद डॉक्टर शारदा प्रसाद झारखंड. 4 लोगों का नाम. अच्छा, डॉक्टर शारदा प्रसाद फ्रॉम झारखंड जुड़े हुए हैं. नहीं हो गए. डॉक्टर ज्योति बोलना आपको. मैं अनुरोध करना चाहूंगी आप सबसे, अगर आप सबको कुछ जानना है, कुछ जानकारी है, कोई कुछ उत्सुकता है तो आप अपनी उत्सुकता हमसे साझा कर सकते हैं. हेलो. यस मैम. हेलो. मेरी आवाज जा रही है आप तक? यस मैम आ रही है. इसमें जो विकलांगता में, शारीरिक विकलांग में किन्नर तो निश्चित रूप से आएंगे. किन्नरों को अपना अलग इतिहास है, तो किन्नरों को शारीरिक विकलांगता में लिया जाएगा या नहीं? हाँ, ये ऐसा है कि पूरी तरह से अभी उसकी चर्चा होगी उसके बाद, क्योंकि दोनों तरह की बातें हैं. किन्नर एक अलग बड़ा विषय हो गया है कि उसका विमर्श अलग,
हालांकि उसको हम लैंगिक विकलांग कह सकते हैं, लेकिन विकलांग शारीरिक और मानसिक, लैंगिक को छोड़ के अभी हम इस ओर जा रहे हैं। लेकिन किन्नर विमर्श जो है वो एक अलग विषय है और उसका प्रवर्तन हो चुका है। नहीं सर, एक बात है, किन्नर जो है वो समाज के विकास में तो अपना सहयोग देते नहीं है, उनमें प्रजनन क्षमता भी नहीं होती है, उनके जनांग भी विकसित नहीं होते हैं, तो निश्चित रूप से ये शारीरिक, हालांकि वो एक अलग विमर्श है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन कहीं हम एक विकलांग में जाएंगे। हाँ नहीं, ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि वो केवल लैंगिक क्षमता नहीं है, बहुत सारी अक्षमता है या उनके बहुत सारे अंग शारीरिक विकल हैं, इसलिए वो आएंगे। लेकिन मैंने कहा ना कि जब तक वो विमर्श का मुद्दा नहीं बनेगा तब तक हम उसको एकदम से इस छोटे से समय की संगोष्ठी में कुछ निष्कर्ष दे दे तो वो, लेकिन इस विषय पे हम लोग कभी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत अच्छा कही। जी जी। अच्छा, मैं डॉक्टर शारदा प्रसाद आप अपना क्वेश्चन पूछें। हेलो डॉक्टर शारदा प्रणाम प्रसाद। सर। हाँ जी, डॉक्टर विनय पाठक को मेरा सादर नमन है। हाँ बोलिए। हेलो, मेरी आवाज जा रही है? मेरी आवाज यस मैम, यस मैम, आ रही है आवाज, बोलिए। आ रही, बोलिए। मैं गुरुदेव डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी को सादर नमन करती हूँ